السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ آج ہم اپنی قرآن سننے سنانے کی کلاس کریں گے، یعنی کہ قرآن کو سنیں گے بھی اور سنائیں گے۔ اس کی غلطیاں کریکشن کے لیے غلطیاں نکالیں گے، غلطیوں کی اصلاح بھی ہوگی اور ساتھ میں ترجمہ اور شورٹ تفسیر بھی ہوگی، اور آپ لوگ ہی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رحمن يا رحيم يا الله۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ کون بہن ہے جو ریڈی ہے سنانے کے لیے؟ میں ریڈی ہوں بس جی۔ ٹھیک ہے، سنائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ لیکن جو بہن سن چکے نا وہ خاموشی سے اپنا بے شک مائک بند کریں اور خاموشی سے ساتھ میں آپ بھی پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اب تاکہ آپ کے سارا وہ قرآن سارا ہو جائے جو پڑھ رہے ہیں دوسرے بھی، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اعوذ سنائیں۔ من الشیطان الرجیم مین الشیطان تو نہیں ہوگا۔ من الشیطان ہوں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فائزہ نہیں ہے، زال نرم ہے نا، اور پھر فَإِذَا فائزہ فائزہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا قدئی، قا موٹا ہے اور دئی بھی موٹا ہے، دال نہیں ہے اسے پڑھنا، قدئی نہیں ہے، قدئی تم الصلاۃ، قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ قدئی تم الصلاۃ، قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ کیونکہ تو موٹا بھی ہے اور یہ کلکلا بھی اس کے اوپر ہوتا ہے، چھوٹا کلکلا ہوتا ہے، یعنی کہ آواز ذرا سا جی دوبارہ سنائی دیتی ہے۔ فَإِذَا ٹھیک فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا نہیں، ممنا تم نہیں ہے نا میری بہن، دو میمیں نہیں ہے، یہ غور سے دیکھیں۔ فائزت فَإِذَا ما اطْمَأْنَنْتُمْ نن تم تم فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ یہ جو میم کے آگے الف ہے نا جس جی کے اوپر جزم ہے، یہ اصلی میں حمزہ ہے، تو جب حمزہ جزم کے ساتھ آتا ہے نا تو اسے جھٹکا لگتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ ما ما فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُمْ پوری کر چکو تم صلاۃ نماز فَاذْكُرُوا تو تم یاد کرتے رہو اللہ تعالیٰ کو قیامًا کھڑے ہوئے
वकूदा और बैठे हुए, व अला और ऊपर, जुनूबिकुम फिर अपने पहलुओं के, फ़ाइज़ा फिर जब, अत्मनन तुम बेखौफ हो जो तुम, फ़अकीमू तो कायम करो, अस्सलाता नमाज, इन्ना बिलाशुबा सलाता नमाज, कानत हमेशा से है, अला अलल मुमिनीना ईमान वालों पर, किताबन फर्ज, मौकूता वक़्त मुकर्रर किया हुआ है। वक्त मुकर्रर के साथ, जब वक्त मुकर्रर ना? जी, बिलाशुबा नहीं, आगे, फिर जब तुम नमाज पूरी कर चुको तो खड़े हुए और बैठे हुए और अपने पहलुओं पर लेटे हुए अल्लाह ताला को याद करते रहो। फिर जब तुम बेखौफ हो जाओ तो नमाज कायम करो। बिलाशुबा नमाज हमेशा से ईमान वालों पर ऐसा फर्ज है जिसका वक़्त मुकर्रर किया हुआ है। हम्म। आगे बाजी पढ़ो कि बस इतना एक ही? इस वक्त एक पढ़ते हैं तो देखते हैं इंशाल्लाह, चलो ठीक है। क्योंकि आगे वाली भी लंबी है, तो जो कोई और फिर पढ़ेगा तो एक एक तो हो जाएगा। जी ठीक है इंशाल्लाह। जजाकिल्लाह खैरन कसीरा। उसको हम देखें जरा थोड़ा सा, अभी अभी साथ में रूट वर्ड उसका देखते जाए। आप मुझे बताएं जी, क्या है। कदई तुम में जल्दी जल्दी कर दें, क्या है। कदई तुम कर दिया। एक तुम को पहले अलहदा करें क्योंकि वो अलहदा है। ठीक है, इसमें कज़ई बन जाएगा, कर्ज कज़ई से, जैसे और कद, कदा होता है ना, कदा। कदा, कदा से कदई, काफ दुआ या कदा से। हम्म। कदई तुम। सारी बहनें ठीक है, जी सिस्टर। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। मतलब ठीक है, और हाँ जी बता जो ठीक है रहे हैं। सिस्टर, हाँ जी। जी जी। ठीक है, आगे। आगे किस आगे वकूद का, ओके। वकूद नहीं, इसी का कूदन कियामन का करें पहले। या कियामन का, कियामन हाँ वो जी। देख है, कियाम, हाँ आगे कायम से है ये, तो इसका बनेगा काफ या और मीम। कायम, काफ या मीम। सारी बहनें एग्री करती हैं, जल्दी जल्दी बताते जाए। जी सिस्टर। जी। काफ या मीम, ठीक है, आगे बढ़े, क्योंकि आगे आप लोग ही बताएंगे इसे कि ठीक है कि नहीं। जी आगे बाजी वकूद का इस तरह आएगा। थोड़ी सी ना हिम्मत आप लोगों की होती है कि हम क्या कर रहे हैं ना। जी इंशाल्लाह। जी, आगे वकूद का आएगा, कद से, कद बैठने को कहते हैं, जैसे काफ ऐन और दाल। जी कादा ना, कायदे से भी है ना, कादा, हाँ काद। ठीक है। जी, अतमनन जुनूबा, जुनूबकुम करें। जुनूबी कुम से आएगा, ये जानब से आएगा, जुनूबकुम, जुनूबी कुम का जानब से, हाँ जी, जीम नून, और बा जीम नून और बा, हाँ वाह। जी। ठीक है। आगे ये अतमनन तुम, हाँ जी, आत्मा आत्मनंतम। हाँ? इसका ता अपने तो मीम नून हमजा। ता, मीम तमा, तमा हम कहते हैं, हाँ जी कहते हैं सिस्टर। तमा, है ना, वही है। ठीक है। आगे मकूत आ क्या होएगा, क्या किताबन का, मुंह, हाँ, मेरे मऊकूता। मौकूता से का आएगा, मुकर्रर, कोशिश करें, मीम पहली को हटा दें और वकूत आखिरी अलिफ को हटाएं। हाँ, ये वक़्त का आएगा, वाओ काफ, वक़्त, ता। वाह, हम कहते हैं वक़्त, कभी इस्तेमाल करते हैं वक़्त, हाँ जी, जी जी वक़्त, वही है, जी उर्दू वाला है ना वक़्त। जी। वाव काफ और ता, क्योंकि ता, जो वाव दरमियान वाली है वो भी एक्स्ट्रा है। जी, अच्छा काफ के आगे जो ता है ना, जी वाव सॉरी, वो एक्स्ट्रा है। वाव काफ और ता। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि हमने कैसे इसको निकालना है। जी, ठीक है, आगे जो बहन पढ़ना चाहती है जल्दी से पढ़े, मैं पढ़ लूँ बाजी। पढ़ लें। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला ताहिनु फी इब्तिगाइल कौम। काउम, काउम मीम के मखरज में रहे। कौम इन ताकुनु
تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من تعلمون تعلمون ہاں جی جھٹکا لگے گا نا یہاں پہ ہاں جی وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما وكان الله نون کو نہیں وکان نکالنا اللہ نون کو نہیں نکالنا نلہ نون نہ وكان وکان اللہ الله نلہ علیما حکیما عین کو ٹھیک کریں علیما علیمن علیما حکیما اوکے من نہیں ہے من من علیمن علیما حکیما کیونکہ میم کے جو اوپر ہے نا دو زبریں یعنی کہ جی تنوین ہے وہ تنوین کا آخری جو ایڈیبل نون ہے اس کے اوپر رہنا ہے نون کے مخرج میں ٹھیک ہے علیمن علیما حکیمہ علیما حکیما کیونکہ یہ دیکھیں من کہیں گے تو کیا ہوگا من جی میں نے پرے کر دیا نا مخرج سے اپنی جی زبان کو جی من حکیمہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو کریں اوپر کر دوں میں تھوڑا سا آپ او کو وا اور لانا تاہنو تم ہمت ہارو فی میں اب ابتغائی بجا اب ہوگا نا ہاں جی ابتغاء تلاش کرنے القومی قوم ان اگر تاکونو ہو تم تعلمون تم تکلیف اٹھاتے فإنہم تو بے شک وہ یعلمون وہ تکلیف اٹھاتے ہیں کما یعلمون تعلمون اور یعلمون اس میں دوسرے یعلمون اور تعلمون میں فرق ہے ٹھیک ہے جی تعلمون اور یعلمون ہاں جی اب تا ہم نے پڑھا تھا کل کس کے لیے ہے تعلمون تم کے لیے تم اب واو نون آ گیا تو جمع ہو جی گئی نا جمع ہو گیا ہاں جیسے جی تا تو ہے واو نون جی کی وجہ سے جمع ہو گئی اب جی یا کس یا کی ہے وہ کی ہاں جی تو اب وہ یہ حروف آتین میں سے آگے نا دونوں جی جی ہاں جی حروف آتین میں سے آگے ہاں ٹھیک جی تبھی میں نے باجی وہ لگایا ہے نا وہ تکلیف اٹھاتے ہیں کیونکہ یا ہاں جی ہے نا ہاں ہاں جی جی نہیں میں نے آپ کو نشاندہی کرائی ہے کہ ان کو بھی جی یاد رکھیں ہاں جی ایسے ہی قرآن میں آپ لوگوں نے نشاندہی ان کی رکھنی ہے کما جیسے تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو وترجونا اور تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ سے ماں جو لا نہیں یرجونا وہ امید رکھتے ہیں وہ امید رکھتے اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ وکانا اور ہے اور ہمیشہ سے ہے اللہ علیمن جاننے والا حکیمن حکمت والا ٹھیک ہے اس کا بامحاورہ ہاں جی اور پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم تکلیف اٹھاتے ہو اور تم اللہ سے ایسی چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے حکمت والا ہے تو یہ نا دشمن کا پیچھا کیونکہ اوپر تاہینو فی ابتغاء القوم ہے نا ہاں تو جی قوم دشمن قوم کے ٹھیک ہے اس کا نام لینا ہے پتہ نہیں آپ کے لکھا ہوا کہ نہیں لیکن دشمن کا پیچھا نہیں نہیں ایسے تو دشمن نہیں بات قوم کا لکھا پیچھا کرنے سے ہمت ہاں نہ جی ہار دشمن لکھا ہوا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے بریکٹ میں نا انشاءاللہ دشمن اب لکھا ہوا اس ہے میں سے روٹ ورڈ نکالیں ہاں جی تاہینوں کا پہلے کروں گا جی واؤ ہا نون ٹھیک ہے وہن 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 ہاں کس جی کو کہتے ہیں ایک بیماری ہمت کا ہوتی ہے بیماری ہوتی ہے بیماری وہن مرض ہے تو مرض کمزور پڑنا بیماری میں آ جانا ہاں جی ہمت ہارنا سست پڑ جانا یعنی کہ یہ تو دشمن کے مقابلے ہم کہتے ہیں کیا تو سستی دکھا رہا ہے چلو باہر نکلو ہاں جی جی نا کیا ڈھیلا پڑا ہوا ہے جیسے کرنے کو کچھ نہ چاہے کمزوری ہو گیا نا کمزوری ہاں جی ہاں جی جا ڈر کے جا قوم سے ڈر کے
दुश्मन से डर جی के वो جی कहते हैं ना भीगी बिल्ली बन जाना। جی हमारे माशरे में मैं सिखाने के लिए आप लोगों को उसका मतलब समझाने के लिए कर रही हूँ कि ये है, यानी कि جی दुश्मन को देखकर कमजोर ना पड़ जाओ, جی क्योंकि कमजोरी में क्या होता है, दुश्मन کو دیکھ کر کمزور نہ ہو दुश्मन जो होता है उसे हिम्मत मिल जाती है। ہاں جی یہ تو جی کمزور سے مسلمان ہیں، ان کو کیا 2 منٹ میں ختم کر دیں گے، یہی ہاں تو جی مشرقین مکہ کہتے تھے۔ اور جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمرہ کرنے چلے ہو نا تو رمی میں دوڑنا ہے، جی ان جی کو دکھاؤ کہ مسلمان کمزور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے۔ ابتغائی با عین یا نہیں نہیں، ہاں جی ابتغاء باغین باغین یا باغین یا، ہاں سوری باغین سوری، یا وہ ہاں جی باغین یا ہاں یہ جی باغی، باغین یا باغی سے ہے نا، باغی ہاں جی باغین باغین یا ہاں جی باغین اور یا ہاں جی اصل میں روٹ ورڈ ہے اس کا۔ جی ٹھیک ہے، تاکونو کا پچی کرو کاف واو نون لمونا، لمونا تاکون کا کریں، یا حمزہ لمونا اور تعلم، تعلمون حمزہ لام میم حمزہ لام میم علم سے ہے، ٹھیک ہے، علم سے ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں علم، جی ہاں جی یا علمونا کا بھی یہی ہوگا باجی ہاں علم ٹھیک کا ہمارے اردو میں کیا مطلب ہے؟ جھنڈا سسٹر، ہاں جی جھنڈا بھی، اور علمناک سزا ہاں جی ہاں جی کیا ہوتی ہے؟ جو بہت سخت سزا ہاں ہوتی جی عذاب عذاب والی سزا علیم، ہاں جی عذاب عذاب علیم، دردناک عذاب، علمناک عذاب، تو وہی ہے علم۔ اگر وہ دکھ یعنی انہیں درد ہوتا ہے وہ سہتے ہیں تو آپ بھی تو سہتے ہو نا، جی یعنی اللہ تعالیٰ کیا مسلمانوں کو مرہم پٹی رکھ رہے ہیں، دیکھو کتنا نظر آ رہا ہے، یا لمونا کا بھی یہی ہوگا روٹ ورڈ، پھر ہاں جی ہاں جی same ہوگا۔ ہاں جی آگے بڑھے ترجون میں، را جیم واو ٹھیک ہے الحمدللہ، بس ہو گئے پورے، ٹھیک جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، جی جو 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں آگے بہن جو پڑھے وہ دونوں کو پڑھ لے، جو بہن پڑھنا چاہتی ہے جلدی سے پڑھ لے۔ آبدہ بہن آپ نے پڑھنا ہے؟ نہیں سسٹر میں پڑھ میں سوچ رہی شاید کسی اور سسٹر نے پڑھنا ہو نا۔ پڑھ لیں آپ پہلے، ہاں پھر جی کیونکہ اور کوئی بہن بول نہیں رہی کہ انہوں نے ٹھیک ہے پڑھنا ہے۔ سسٹر، ہاں جی اعوذ باللہ من لیکن الشیطان نئی بہنوں سے ہم کوئی مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ یہ سب کچھ بتائے، یہ پرانی بہنیں ہیں جن کو پتا ہے ان سے کہا جائے گا کہ وہ سب کچھ بتائیں، اگر نئی بہنیں سے کہیں گے بھی تو ہم ان کی ہیلپ کریں گے جی ان کو بتانے کے لیے کہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب بہنیں بتائیں، جی وہ پڑھ سکتی ہیں قرآن بس، ہاں جی سبق تو سنا سکتی ہیں نا، ہاں سبق جی سنا سکتے ہیں اپنی غلطیوں کی اصلاح کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا موٹا نہ کریں نون کو، انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تكن للخائنين خصيما اب واستغفر الله خائنین کو کتنا لمبا کرنا ہے، ولا تکل خصيما نہیں، سسٹر ولا تکل یہ للخائنین سسٹر پڑھنا چاہیے خصیما، ولا تكن للخائنين خصيما اوکے، لل ہے کہ لل ہے؟ لل ہے سسٹر، لل، لل ہاں کبھی نہیں کہنا، لل ہاں کہیں گے تو لام کے مخرج سے باہر آتے ہیں ہاں حضرت، جی لل، ٹھیک ہے، لل، ہاں جی اپنی لل، زبان کی نوک جو ہے وہ لام کے مخرج میں رکھے اور نون کے مخرج میں رکھے، اگر ہاں نون آپ کا باہر آ رہا تھا، ٹھیک ہاں ہے، جی سسٹر ٹھیک ہے۔ واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما
माँ नहीं होता, माँ। माँ, हाँ जी, गफूर रहीम। हम्म। हाँ जी सिस्टर। इन्ना बेशक हम अंजलना हमने नाजिल की, इलाइका आपकी तरफ, अल किताब किताब बिल हक़ साथ हक़ के, लितहकुमा ताकि आप फैसला करें, बैना दरमियान अन्नास लोगों के, बिमा साथ उसके जो अराका दिखाया है आपको, अल्लाहु अल्लाह ने, वला और ना तकुन आप हों, लिल खाइनीन तरफदार, ठहर से बड़ा काम है तो कहाँ खाइन चला। होता है ना, खाइन। हाँ जी, तरफदार खाइनों का। तरफदार हाँ, खाने के यानी कि उनकी तरफदारी, खयानत करने वालों के साथ ना हो जाए, उनकी तरफदारी ना करे। ठीक है सिस्टर। खसीमा झगड़े में, हम्म। वास्तगफिर और आप बख्शिश मांगे, और तू बख्शिश मांग, अल्लाह बस अल्लाह। तग फिर है ना, हाँ फिरू जी, नहीं है। हाँ जी, फिर और तू बख्शिश मांग अल्लाह अल्लाह से, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला काना है, गफूरन बड़ा बख्शने वाला, रहीमा नहायत मेहरबान। रूट वर्ड कर, रूट वर्ड करो। रूट वर्ड इनके निकालें, वह आसान वाले हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं, खाए नहीं इनका करें, बाकी तो है। ताहकुमा में तो लाम और ता निकाल दें तो बाकी वही है, ऐसे ही है ना। हाँ जी सिस्टर, खाइनीन का खा वाव नून है सिस्टर। खाउन। हाँ जी। तो दूसरा खसीमा, आरा का, आरा रा हमजा या होगा। रा, रा हमजा से है ना, रा जी, देखना हाँ जी, है ना, हाँ रा खुली आंख से देखने को हाँ कहते हैं। जी, जी। हमजा रा काफ सिस्टर। हाँ। नहीं नहीं, नहीं, हाँ जी। रा हमजा या नहीं होगा बाजी। रा हमजा या है। अच्छा जी, रा हमजा या। काफ तो अलहदा है ना तुझको, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है सिस्टर। हाँ काफ को तो निकाल दें। ठीक है, जी, रा आ। हाँ ठीक है। ठीक है, रा आ जो, क्योंकि कुछ बीच में से निकला हुआ है, ठीक है, हाँ जी, गायब है, इस वजह से आपको पता नहीं लग रहा। जी सिस्टर हमजा एक को दफा फिर आतईन, सिस्टर हरूफे आतईन में से है ना। एक दफा फिर बताएं सिस्टर इसका। रा हमजा या। रा हमजा या। हाँ लिख लें, उसको लिख हाँ जी, मैं लीजिए। लिखने लगी हूँ जी, हमजा या। ठीक है सिस्टर। ठीक है इंशाल्लाह ताला। खसीमा सिस्टर। हाँ जी। खा स्वाद मीम। हाँ ना, खास आदमी, हाँ जी। हाँ, स्वाद स्वाद मीम, मीम। ठीक है बाजी। स्वाद मीम, खसम, मीम, हाँ खसम जी, झगड़े को है ना। जी हाँ जी, तो बाकी सारे वही हैं जो पहले हम कर चुके हैं हाँ ना। जी, जी। हाँ जी, वस्तगफिर में गफ अलीफ सीन और ता जो हैं ये बाब की हैं। हाँ जी, 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 इस्तिफआल बाब से है ना, जी। इस्तिगफार, इस्तिगफार। इस्तिगफिर। तो ये इसका तो होगा गैन फारा नहीं होगा बाजी। गाइन फारा, हाँ जी, गफर, हाँ जी, तीन बाब के हैं, और वाव जो है वो तो हो गई ना, और के लिए और की अतफ, होगी, हाँ जी, वाव जोड़ने के अतफिया लिए। हो गई ना। हाँ हाँ जी, जी, अतफिया होगी। हाँ जी, गफर गफर हो गया ना फिर। ठीक है। हाँ तो जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, बाकी सारे अब गफरा, वस्तगफिर में भी गफरा है, और हाँ गफूर में भी भी गफर। गफरा ही है, गाइन गफारा ही होगा, हाँ जी, हाँ गाइन जी, फारा है, हाँ ठीक हाँ है। जी। जी, गाइन और फारा। रहीमा में रा आसानियां, हा मीम, हाँ, राहा मीम, रहम। मीम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतनी तो समझ आ रही है ना हमें। जी सिस्टर, हाँ जी, अब ठीक है इंशाल्लाह ताला। अब कौन बहन, जास्मीन बहन, खालदा बहन, आप पढ़ना चाहते हैं, कोई बहन? हाँ जी पर मैं हम्म? खालदा बहन, आपने पढ़ना है? अभी हाँ सिस्टर जी किसी ने कहा है कि मैं हाँ पढ़ता हूँ। जी, जी, पढ़े बोला। प्लीज। मैं हाँ जी, पढ़ूंगी बाजी। उनकी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है। बात नहीं आ अभी वो ढूंढ रहे हैं शायद अपना फोन उसके। जी खालदा बहन, आप पढ़े? रही। हाँ जी
साथ में हो जाए फोन के, क्योंकि आपकी आवाज बहुत थोड़ी है। फोन के साथ या फिर आवाज ऊपर कर ले फोन की। ठीक है, मैं आवाज ऊपर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुरान शरीफ तो पढ़ूंगी वैसे देख के। इंशाल्लाह 2 इंशाल्लाह आप मिनट। कुरान से ही पढ़े। वाला तुजादिल लाजीना यक्तऊना अनफुसहुम इन्नल्लाहा अनफुसहुम अनफुसहुम यख्तानून अनफुसहुम। यक्तानूना अनफुसहुम हम्म, इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना खुवानन आसीमा खवानन असीमा। खुवानन आसीमा। नन नहीं होगा, नन। नन अपने नून के मखरज में रहे, जुबान नन को उधर ही लगाए रखे, नन। नन नन नन। खुवानन आसीमा। अच्छा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खवानन असीमा। इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना खुवानन आसीमा। हम्म असीमा। असीमा। इन्नल्लाह, लाम अल्लाह का जो होता है उनको मोटा उसको करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ला अल्लाह के नाम से पहले जबर आ जाए किसी लफ्ज पर, हरफ पर, जा जेर आ जाए, तो फिर अल्लाह, सॉरी, जबर आ जाए, जा पेश आ जाए तो मोटा पड़ा जाएगा। जब जेर आ जाती है तो फिर बारीक। इन्नल्लाह, अब जहाँ पे नून के ऊपर जबर आई है तो मोटा रहेगा, लेकिन नून को मोटा नहीं करना, हम अल्लाह उसको मोटा करना है। इन्नल्लाह, इन्नल्लाहा इन्निल्लाह नहीं, इन्नल्लाह। इन्नल्लाह इन इन नल लल ला। ला इन इन्नल्लाह नहीं, निल्ला इन आप कहते हैं, आप मेरा ख्याल पकाया हुआ है ऐसे, निल्ला नहीं है। नून के नीचे आप जेर लगा के पढ़ते हैं तो वो तो फिर मोटा भी नहीं रहे, वो तो इन निल्ला होगा, फिर इन निल्ला तो है ही भी नहीं है। ਉਸ ਬਾਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿੱਥੇ ਟਿੱਕੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ पढ़ते हो फिर उन्होंने हाँ नहीं, गलती ठीक होनी करे, बच्चे इसको अपनी अपने कुरान पे निशान लगाएं कि ये इसके नीचे जेर नहीं है। इसके नीचे जेर लगा के तो उसको थोड़ा सा काट दे, आपको पता हो कि मैं जेर पढ़ती हूँ, नहीं पढ़नी, ठीक है। ठीक है बाजी में चीटा मार देता हूँ। हाँ, ऐसे कर दें, ठीक है। पहले इसको करें, देखते हैं आगे कितनी है। इसका नहीं करूँ बाजी। तर्जमा करें ना, अच्छा ठीक तर्जमा, है। हाँ जी। वाला और ना तुझा तुझा दिल हम्म, आप झगड़ा करे। ओके, तू का मतलब आप है, तू जा दिल, तो तू तुझा झगड़ा, दिल है ना। आप झगड़ा करे। हाँ। आनिलाजी अन आनिलाजीना अन तरफ से। अन तरफ से हाँ हाँ। आनिलाजीना हम्म, इन लोगों की तरफ से हम्म, युखादिनूना खयानत करते हैं। नहीं अनफुसहम अपने आप या से नहीं यख्तानून। यख्तानूना हम्म, खयानत करते हैं। हम्म, अनफुसहम अपने आप से। अपने आप से ही धोखा दे रहे हैं अपने आप को, ठीक है। इन्निल्लाह पे अच्छाई में इन्ना इन्निल्लाह इन्नल्लाह इन्निल्लाह इन्निल्लाह इन्नल्लाह। इन्निल्लाह हम्म, यकीनन अल्लाह ताला हम्म, ला नहीं युहिब्बु मोहब्बत करता हम्म। मन इससे जो काना उससे जो हमें उससे जो मन उससे उससे जो। उससे जो हम्म, उससे जो काना हमेशा से हो खवानन बहुत कायन खाइन खाइन, खयानत खाइन करने वाले को कहते हैं खाइन। खाइन खाइन खाइन, आसीम खाइन। खाइन खाइन आसीमन सख्त गुनागार सख्त असीमन, गुनागार असीमन सख्त गुनाह। आसीमन सख्त गुनागार
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मुहावरा कर दें। और आप और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप इनकी नियाबत से झगड़ा ना करें जो जानिब अपने से, इनकी जानब जानिब। से जानब से झगड़ा ना करें जो अपने आप से खयानत करते हैं। यकीनन अल्लाह ताला इससे मोहब्बत नहीं करता उससे जो उससे यानी उससे जो बंदा ये कर रहा है खयानत, हम्म, उससे मोहब्बत नहीं करता अल्लाह। उससे मोहब्बत नहीं करता जो हम्म हमेशा से बहुत खयानत सख्त गुनाहगार है, हम्म गुनाहगार हो, हम्म। सख्त गुनाहगार हो। बस नहीं मैं पढ़े बाजी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं इसको। तो जादिल में बाजी, अगर आप निकाल दें, ता निकाल दें और अलिफ निकाल दें बीच में से, तो क्या रह जाएगा? जीम दाल। हम्म? सॉरी बच्चे की क्या निकालना? अगर हाँ, अगर ता शुरू वाली निकाल दें और बीच में से अलिफ निकाल दें जीम के आगे वाला। जीम तो दाल तलाम जी, जदला। तो जदल, जदला। हम कहते हैं ना, हाँ जी हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी तुझे जदाल, झगड़ा करना। ओके, हाँ जी। आगे आगे देखें। आगे है यख्तानून में देखें, यख्तानून। खाता नहीं, नहीं, खा खा, वाव नून नहीं होगा पाजी। खा या को वाव निकालें। या और वानून दोनों निकल जाएंगे, क्योंकि वानून जमा के लिए आया है, या अच्छा आई है। अब ता जो है वो भी इसकी बाब की ता है, इफ्तिआल की है, तो वो ज्यादा है, यानी कि उसको ता को भी निकाल दें। बाकी रह गया खा अलिफ नून, है ना। खा तो अल्फ ये अलिफ अलिफ जो है ना, वाव है, खा क्या कहा? अल्फ वाव वाव खा खा लेंगे। वाओ नून खा वाव नून, खाउन। क्योंकि ये जो अलिफ बदल गया वाओ में। अच्छा ठीक है, ठीक हाँ जी। ठीक, हाँ जी, खाउन। और आगे खवानन का कर दे। खान खान खा अलिफ नून इसका भी वही नहीं होगा पाजी। वही है, लेकिन वही उनको है। थोड़ा सा सोचने देना उनको। अच्छा हाँ। खा खा वाव और अलिफ जो नून बदे नून, नून। नून। ओके खा ठीक है वाव नून होगा, अलिफ वाव के आगे एक्स्ट्रा है और नून के आगे भी एक्स्ट्रा है। ठीक है ठीक है, ठीक खा हो वाव गया। नून होगा, खाउन। खा वाव नून हो ठीक गया है, ठीक है। खयानत करने वाला। हाँ जी जरूर। खवानन असीमा। ठीक खुवाना है, असीमा असीमा का करें, मीम के आगे वाली अलिफ असीमा खत्म कर दे। अलिफ खत्म कर दे मीम के आगे वाली। तो और क्या खत्म करेंगे? देखे कौन सा है, हम पढ़ते हैं इसको। असीमा इसम, इसम इसे इसे क्या होता है? हमजा हमजा, सा, हमजा मीम का मीम। मीम या भी एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। हमजा मीम सा मीम, हमजा सा सामी मीम। पता चल गया? ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला ये हो गया हमारा। अब जो बहन पढ़ना चाहती है वो पढ़ ले, वरना फिर हम आगे जिस यख्तानून ये आयत नंबर आगे वाली। यास्मीन बहन, अगर तो आपने पढ़ना है तो अब मौका है आपके पास, पढ़ लें। नहीं तो फिर कोई और बहन पढ़े इसको। ठीक है। और वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या हाल है बहन? जी ठीक ठाक। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। यस्ताखफून मिनन्नासी वला यस्ताखफून तखफूना, मिनल्लाह तखफूना। यस्ताखफून मिनल्लाहि वहुवा माहुम इज बैतून बैतून इज मा इज इज युबय्यितून। इज युबैतून मा ला यरदा
من القول يرضى ما لا يرضى القول وكان الله بما يعملون محيطا. من آگے بھی القول پڑھیے. وكان الله بما يعملون محيطا. محیطا يعملون يعملون محیطا. طا طا موٹا محیط بھی ہے اور لمبا بھی ہے. طا دو الف کے برابر. ہوں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یہیں تک پڑھنا ہے، آگے بھی پڑھنا ہے. نہیں جہیں جی. تک پہلے اس کو ٹھیک کریں. اس کو پڑھے محیطا. آپ کو نظر آ رہا ہے نا، پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی. جی. یستخفون وہ چھپتے ہیں من سے ناسی لوگوں، ولا اور نہیں یستخفون وہ چھپتے من سے غین کی اللہ. آواز آتی یستخفون. ہاں جی، خا کو نکالنا ہے، غین کی آواز نہ، کیونکہ یہ دونوں کا مخرج ایک ہے نا، ایک جگہ سے نکلتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا جی. ہو جاتا ہے. من سے اللہ و ہوا جب وہ ہے معہم ساتھ ان کے اس جب یبیتون رات کو یبیتون بیتون رات کو مشورہ کرتے ہیں ما اس کا جو لا نہیں یردا یردا. یردا وہ پسند کرتا اس کو من. نا آپ نیچے نشان اپنے قرآن کے اوپر جس پہ ہر روز پڑھتے ہیں نا، اس کے اوپر نشان کا ہے، آپ یاردا اس کو کہتے ہیں، شاید یہ یاد رکھا ہوا ہے آپ نے. جی جی ٹھیک ہے. یردا ہے دا، ہے نا. جی جی. القول بات وکانا اور ہے اللہ بما یعملون وہ کرتے ہیں محیط جو گھیرنے محیطہ والا. نہیں ہوگا، محیطہ محیط. نہیں، تب ہوگا جب اس کے آگے الف کے اوپر جزم ہوگی، جی کیونکہ الف محیط. خالی ہے. تو الف خالی جب ہو جائے تو یہ مد لیٹر بن جاتا ہے، ہم نے کھینچنا ہے دو الف کے برابر، جی جی. محیط دو دو محیط حرکات کے برابر. محیطہ. مو ہی فی تو تا. تو کیونکہ یہ تا کے آگے الف جو ہے، کیونکہ تا موٹا حرف ہے، تو جو ان کے آگے موٹے حروف کے آگے الف ہوتا ہے وہ بھی موٹا ہو جاتا ہے. تو آ تک جی ہم نے موٹا ہی رکھنا ہے. تو جی. ٹھیک ہے. محیط. ہاں، اب ٹھیک. اس کو کریں انسان، بامحاورہ کہتے ہیں اس کو. وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہ ان کے ساتھ اس وقت بھی موجود ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسے خفیہ منصوبے بناتے ہیں جن سے اللہ راضی نہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. احاطہ کیے ہوئے ہے یا گھیرے میں لیے ہوتا ہے؟ یہ گھیرے میں لیے ہوئے کا تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ گھیرے میں لینا کیا ہے جی نا. جی جی گھیرے میں سمجھ آتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، ورنہ احاطہ بھی کہہ سکتے ہیں. احاطہ کا بھی ہم پاکستانی بہت جی سمجھتے ہیں اچھی طرح، ہم کہتے ہیں ہمارا احاطہ ہے جی. جی ہاں. نا؟ وہی احاطہ جی ہے، گھیرنا. یعنی کہ اس زمین کو گھیر کے ہم نے چاروں طرف چار دیواری کر دی، تو ہم کہتے ہیں جی میرا احاطہ ہے. تو گھیرے میں لینا یعنی کہ ان جی کے اوپر وہ پوری نگاہ ہے، پورا وہ اس کے کنٹرول ہے، وہ نکل کے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کو جی وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یستخفون میں کیا ہے. یا جو ہے اس کے ساتھ واو نون جمع کے لیے آ گیا، یا آئی تھی نا وہ کے لیے، تو واو نون نے آ کے وہ سب کے لیے کر دیا. تو ان تینوں کو نکال دیں گے ہم
ठीक है। तो फिर या जी की जगह पे अलीफ था, इस अलीफ सीन और ता जो है ये एक बाब की है, इसको भी निकाल दें, यानी आप समझ लें कि ये ज्यादा है, ठीक है। जी। तो फिर बाकी के कौन से दो हरूफ रह जाते हैं? खाफून, खा और फा, नहीं वाव नून तो निकाल दिया पहले ही ना, या के साथ। खाफा, खाफा, खा फे, और फा, और जहां पे थी या जी जज्म वाली थी, तो वाव नून ने आके उसको हटा के खुद बैठ गए, ठीक है। अब वाव नून हटा दिया तो वो या फिर वापस आ गई कि मैं अपनी कुर्सी पे वापस आती हूँ, ठीक है। जी। तो खफीयुन, खा फा खफा, और या, हाँ, तो फिर हम कहते हैं मखफी, छुपा हुआ। कभी सुना तो जी उर्दू में मखफी? जी जी सुना है। मखफी, हाँ मखफी। तो खफीयुन, छुपा हुआ, छुपे, छुपा, छुपते हैं, जी ठीक है। अब जी आगे वाले भी यही होगा ना रूट वर्ड। जी जी युबय्यितूना का मुझे बताए, जैसे मैंने या और वानूना इकट्ठा बताया था कि या जो है ये वो उनके लिए है जो हमें पता नहीं कौन, जनी के नजर नहीं आ रहे, गायब हैं। और वाव नून ने आके उन सब कर दिया, यानी कि ज्यादा लोग कर दिए एक की बजाय, ठीक है। या आती अकेली तो एक ही बंदा था, और वाव नून आ गई तो उसने ज्यादा लोग कर दिए, ठीक है। जी। तो अब इन दोनों को निकाल दें, यानी ये इनसे इसको निकाल दें, आगे पीछे से निकाल दें, क्या रह गया? बा, या, ता, और ता, बैत, हम बैत कहते बैत हैं, बैतुल्लाह। हाँ, बैतुल्लाह, बैतुल्लाह हम कहते हैं, बैत जी कहते हैं घर को। जी यानी कि जी जब वो मशवरे कर रहे होते हैं तो छुप के ही कहीं करते हैं ना। जी जी जी, जरूर नहीं करते हैं, जाहिर हाँ, है, हाँ। तो बैत घर को कहते हैं। यू बैतून, बीतती भी हम कहते हैं, मेरे ऊपर क्या बीती आपको क्या पता। हाँ हमारे जी, उर्दू में भी जी वही होता है, हाँ जी। बीतना भी, बा जी या ताई। तो सुबहान अल्लाह, हमारी उर्दू ही तो इसमें छुपी हुई है। यरदा में करें क्या है? यरदा में या जो है दा, या तैन की है, या को निकाल दें। जी या निकल गई। या निकल गई तो रा, क्या रह गया? रा, द्वा रा और दाद रा और या राधी। रा दाद और या या, या। या रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, जी रा रदियल्लाह, दाद वाव नहीं होगा बाजी? वरादू मैं बता रही हूँ ना, रा जी दाद और वाव वाव में, या भी किसी मायने में आता है। जी रदियल्लाह, हाँ जी रदिया, जी राजी हुआ, ठीक है। और फिर वरादू, दाद वाव, वर वरादू, रात, दाद वाव भी आता है, ठीक है। तो ज्यादातर हम दादू रा राजी अल्लाह, दाद वाव लेते हैं, लेकिन ये जो ये सामने नजर आ रहा है ये भी रूट वर्ड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस ऐसे भी आता है, रदी अल्लाह अन्हुम, क्या हम क्या कहते हैं? रदी अल्लाह, सहाबा इकराम के लिए रदी अल्लाह लिखते हैं ना। हाँ जी, जी जी वो ऐसे ही तो नहीं लिखते हैं, आखिर आता ही है उसमें, रूट में तो हाँ आता जी है। आते जी हैं सिस्टर, जी हाँ जी। रादी भी आता है, रादी जी होना, रादाद या रादाद वाव, वाह, दोनों ही हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। उसमें ब्रैकेट डाल, यानी कि वुसत है ना। जी हम उसको जी एक कूजे में तो नहीं बंद कर लेंगे कि बस यही है, तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जी कौल, कौल अल जो कौली है, कौल, में अल जो है वो खास करने के लिए आया है। तो यास्मीन बहन बाकी क्या रह गया? काफ, वाव, लाम, यही है कौल, कौल, हम कौल कौलो कील कहते हैं उर्दू में। जी कौल, जी कौल हम इस्तेमाल करते हैं, वही है बात, हमारा उर्दू वाला ही है, जी ठीक है। या मालून में, या या को मलून, निकालें और वाव नून। अब तो आपको पता चल गया हो कि जब या आता या ता या कुछ आती है तो वाव नून आता है, तो उन तीनों को निकाल देना होता है रूट निकालने के लिए, ठीक है। जी तो क्या रह गया? आइन मीम, आइन मीम, लाम, हाँ लाम, अमल हो गया ना, अमला।
अमल। ठीक है। मुहित, मुहितन में ये आप देखें, मीम जो है ये ज्यादा है और जी। अलिफ आखिरी ज्यादा है, तो क्या रह गया? खे, ये, खे, या, ता। खा या ता। अब ये खा या जो खा है नहीं, ये हा वाव में होगा बाजी, बदलती है। हा ये होगा। वाव में, या जो है वो वाव में बदल जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे से बदलते रहते हैं। ठीक है, जी। हा, ये हो हा गया। वाव उतारी होगा बाजी। मैं वो बता रही है ना, वही के अच्छा या जो है, क्योंकि या रह गई सामने सामने नजर आ रही है, तो उसका कुछ करना है ना, ऐसे नहीं वाव निकाल देनी ना। उन्हें तो जी पता हो कि वाव क्यों आई है ना। जी। हम तो वाव नजर नहीं आ रही, तो उन्हें हम कह दें कि वाव है, तो कि वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। जी अब हा या और ता है, या अलीफ और या जज्म, अलीफ या फिर वाओ जज्म होते हैं, ये आपस में बदलते रहते हैं। ठीक है, ये जी। बदलने वाले हरूफ हैं, एक दूसरे की जगह पे आके बैठ जाते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी बताया। तो ये या की जगह वाओ आती थी, वाओ है लेकिन या ने ली हुई है जहां पे, क्योंकि जेर है पीछे। ठीक है, ही। जी। तो जहां पे वाओ है असल में, हा वाओ ता, हाउत। जी। ठीक है, जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसा लगा शुक्रिया। आपको? थोड़ा सा ही पढ़ के बेशक। जी, बहुत अच्छा। तो अच्छा, पढ़ेंगे दोबारा फिर आएंगे। जी, इधर थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए मैं काफी अरसे बाद आई हूँ और मैंने काफी अरसे बाद देखा, और टाइमिंग्स का भी थोड़ा मसला आप था। पाकिस्तान कराची से हैं ना? नहीं, कराची से नहीं, कश्मीर से हूँ मैं। कश्मीर से, ठीक है। मुझको एक जी। बहन यास्मीन कराची से भी आती थी। ठीक है, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम, जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पास इंटरनेट हो, ना हो तो आप सुन सकते होते हैं, लेकिन ये सुनाना कोई और चीज है। जी। जी, सुनाने में अपना ही मजा है। क्योंकि अपनी गलतियां की इस्लाह होती है ना, गलतियों की। जी। ठीक है, अब जिस बहन ने चलो आगे आप ऐसा करें कि छोटी आयत है तो पढ़ लें आप। मैं ही पढ़ लूँ? आप ही पढ़ लें, आपके लिए जी। बोनस है जी। 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 जी, थोड़ा सा मैं इसको, थोड़ा पता नहीं किस साइड पे चला गया है थोड़ा। वामान, वामान जहाँ पे है, वामान आयत नंबर 110 है। 110। जहाँ पे मेरा एरो है आप देख सकते हैं। हाँ, वमन या अमल, नहीं, इकट्ठा करें, इकट्ठा करें, अमय क्योंकि शद या है ना। अमल। नहीं बाजी, जी। एक आपने छोड़नी थी। हाँ जी हाँ सुशी, मैं जी, एक भी वही मिनट, देख रही सॉरी। थी। अब हाँ ऊपर चले। तुम तो नहीं है। इससे हाँ पहले जी। वाली, अच्छा, हाँ। हाँ तुम है, ठीक है, ठीक हा अंतुम हाउलाई जदलातुम है। जा, जदा जा। जादलातुम नहीं, अच्छा, आप जस्म वाले जो है ना लाम, उनको नहीं पढ़ते, उनको लाम जबर वाला पढ़ते। जा दल तुम। जदालातुम जादलतुम हम्म। अनहुम फिल हयाति दुनिया फमन युजादिलु नहीं, इकट्ठा करें इसको। युजादिलु युजादिलुल्लाह हाँ, अन्ना फमान युजादिलुल्लाह। जादिलुल्लाह अन्नहुम यौमल नहीं, क़ियामति अन्नहुम नहीं ना बनेगा, शद नहीं है। अन्हुम अन्हुम अन, यौमा हाँ, यौमल यऊ, क़ियामति यऊ, यऊ होगा, यऊ यौमल क़ियामति हम्म। अम मन यकूनु अम्मैया, अम्मन यकूनु हम्म। अलैहिम वकीला अलैहिम वकील वकीला, अलैहिम अलैहिम वकीला वकीला। ठीक है, इनको अलैहिम। जरा सा आप तर्जमा किसी का भी मतलब किरत भी सुन सकते हैं। ठीक है, जी। जी। अम्मैया, अम्मैया जहाँ पे देखे, अम्मैया रा भी हम एक पढ़ते होते हैं, वो क्या है, एक पोइम सी है, अम्मैया रा। और कौन होगा, तो जे अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला। ठीक है,
तो इसको भी आपने ठीक करना है। और अनहुम जादल तुम, क्योंकि ये नून जज्म वाला और लाम जज्म वाला आपने नहीं पढ़ा, इनके ऊपर आप हरकत लगा देते हैं। इनको अपने कुरान के निशान लगा दें, ठीक है। जी। इंशाल्लाह ताला इसको आप जल्दी से कर दे। अंतुम तुम हो उला उलाई, वही हो के जदल जदल तुम। वही लोग हो, जहां पे लोग वही हो के भी है, लेकिन आपके जहन में हो तो लोगों की बात हो रही है, ठीक है। जी, जदल तुमने जा झगड़े दल किए। तुम, जा अलहदा है और दल तुम अलहदा है। जी, जदल हम्म, तुमने झगड़े किए, अनहुम उनकी तरफ से, फी में, अल हयाती जिंदगी, दुनिया दुनिया की, फमई पस कौन, युजादिल जादिलु झगड़े का, अल्लाह अल्लाह से, अनहुम उनकी तरफ से, यौम दिन, कय्यिमाती क्यामत कियामती। कियामती क्यामत के, हम या मन कौन या कौन या या कून। कौन हम्म, होगा, अलैहिम उनका, वकीला कारसाज। उनका वकील है। तो यकूनु हम कहते हैं ना, कौनो मकान भी कहते हैं ना, जी उर्दू जी वाला कौनो मकान। और फिर यकूनु जो होता है कौन, कुन फयकून, है ना। जी फयकून भी आ जाता है ना। जी। तो का यही है, सेम ही। ओके ठीक है, आगे पढ़े। इसको ठीक, इसको पढ़े। मुसलमानों हाँ तुमने बस। मुसलमानों तुमने दुनिया की जिंदगी में मुनाफिकों की तरफदारी में झगड़ा किया, मगर क़यामत के दिन कौन उनकी तरफदारी में अल्लाह से झगड़ेगा, या कौन होगा उनका काम बनाने वाला। काम बनाने वाला कौन, और जा कौन उन पर वकील होगा, यानी कि कौन उनका वकालत करने वकील, वाला है ना, जी वकालत वकील करने। होगा या काम बनाने वाला हो। यानी क्यामत के दिन उनको कौन बचाएगा, ये जी है। जी, दुनिया पे तो। यानी दुनिया में तो एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं ना, उसकी तरफदारी करती किसी की, कोई किसी ने कत्ल भी किया हो तो उसकी तरफदारी में इनकार कर दिया कि नहीं इसने नहीं किया, ये मेरे साथ था। जी होता है, हाँ जी। जी, हाँ पाकिस्तान होता में है। होता है। जी हो ये तो उस जाता वक्त है जी। मेरे साथ था तो इसने कैसे कैसे कत्ल, यानी उसको बचाने के लिए। लेकिन जी क्यामत के जी दिन नहीं। जी जी ठीक है। हाँ अन तुम, इनको देखें हम, जादल तुम में देखें, हमने देखा है ना इसका, हाँ जी। देख लिया है पहले, ये इसको छोड़ दे। आगे है, बस यही है। कियामत में भी काफ या मीम हम कर चुके हैं, और वकीला में कर दे बस। वकीला, हम्म, वकीला में वेट करो ना। काफ या लाम, नहीं, काफ क्यों, वाव वकील यही है हमारा, वाव उर्दू और वाव अरबी वाला सेम ही है। वाव काफ लाम। वाव काफ लाम, या बीच में से निकाल देंगे और आखिरी अलिफ निकाल देंगे, तो जी वाव काफ लाम होगा, वकालत। वकालत हम जी समझते हैं, वकालत जी। वो ही है। वकील भी उसी से, वकालत भी यही से, इसी से ही है। जी। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम शमीम, आगे मैं पढ़ूं। पढ़े। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यअमल सूअन मैं या अमल, वमन यअमल सूअन सू को लंबा करें। वमन यअमल सूअन औ हम्म, यज़लिम नफ्सहु सुम्मा तो मीम को लंबा नहीं करना, अलिफ नहीं है इसके आगे, सुम सुम्मा यस्तगफिर यस्तगफिरिल्लाह रिल्लाह, लाम लंबा है। यस्तगफिरिल्लाह याहिदिल्लाह
यजिदिल्लाह याजिदिल्लाह गफूरन रहीमा गफूरर रहीमा। गफूरन रहीमा ये दोनों ही रा मोटी हैं, ठीक है, जबर वाली और दो जबर रा। गफूरन रहीमा आगे वाली भी पढ़ दें क्योंकि छोटी छोटी हैं, जो 3 आयतें छोटी छोटी हैं। वमन यक्सिब इस सिब वमन यकसिब यक्सिब इसमन फइन्नमा यक्सिबुहु यकसिबुहु। यक्सिबुहु नहीं, बू को खींचना नहीं है, इसके आगे वाव नहीं है। यक्सिबुहु यकसिबु यक्सिबु हु हु। अब बुहु बुहु। यक्सिबुहु हाँ जी। अला नफ्सी अला नफ्सी हाँ। वकाना वकानल्लाहु 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 अलीमन हकीमा अलीमन हकीमा। अलीमन हकीमा के आगे वाली भी पार्ट दे, खत्म होने लगा है। वमन यक्सिब खतीआतन आ को और लंबा नहीं करना, आ के आगे अलिफ नहीं है। खतीआतन आतन आतन औ इसमन सुम्मा यरमी बिही बरी यरमी यरमी, रा को मोटा, यरमी भी। यरमी बिही बरी अन बरी अन अन। बरी अन फकादिह तमा नहीं, का नहीं है, का को लंबा करेंगे तो अलिफ लगा देते हैं। फका फकादिह फका फका फकादिह तमला तमाला फकादिह तमला तमाला। तमला बुहतानौ इसमम मुबीना इस्मम मुबीना। इसमम मुबीना अल्हम्दुलिल्लाह, आप माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक पढ़ते हैं। अगर लगातार पढ़ेंगे तो और भी ठीक हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसको तर्जुमा करते हैं। अच्छा जी। और यो कोई अमल करे बुरे या जुल्म करे जान अपनी पर फिर बख्शिश मांगे अल्लाह से, वो पाएगा अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान। और जो कोई कमाए गुनाह तो बेशक वो कमाता है, उसे मांगे तो अल्लाह को बख्शने वाला रहम करने वाला पाएगा। जो गुनाह करता है इसका वो वह बाल पर जान अपनी और है। अल्लाह खूब जानने वाला बड़ा हिकमत वाला है उसका और वो बाल उस पर है, यानी उसकी अपनी जान पर ही है ना। बड़ी हिकमत वाला है। और जो कोई कमाए खता जा गुनाह फिर इल्जाम लगाए इसका किसी बेगुनाह को, पस बेशक उसने उठाया बुहतान और तना बड़ा बुहतान, बुहतानन बड़ा बुहतान, बड़ा बुहतान क्योंकि इस्मान है ना। हाँ हाँ और ठीक। गुनाह हाँ जी। ज़ाहिर गुनाह करे फिर इसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर लगाए तो इसने बड़ा बुहतान और सरी गुनाह अपने सर ले लिया। हाँ, तो ये आप इसी से पढ़ रहे हैं जो सामने है। हाँ जी। अच्छा, जब आप पहले तो एक एक अलहदा का पढ़ते हैं ना, फिर जब इकट्ठा पढ़ते हैं ना बा मुहावरा तर्जमा, फिर ये जहाँ पे शुरू होता है, याद रखो जो कोई बुराई करे या अपने ऊपर जुल्म करे, ठीक है। ये जो अच्छा है, ये लाइन, एक लाइन, ये ऊपर वाली लाइन अलहदा अलहदा लफ्ज का तर्जमा है, और उससे नीचे वाली लाइन जो है वो बा मुहावरा इकट्ठा तर्जमा, जैसे हम बात कर रहे हैं वो इकट्ठी हो जाती है वो, ठीक है। इस तरह है, तो फिर एक बार ये पढ़ते हैं, दूसरी बार ये पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू भी हमारी ठीक हो जाएगी, बोली बलाई जो है, इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह। ये हम देखते हैं मिलके के सू अन में क्या है। रक्साना बहन, अगर मैं सू अन का अलिफ हटा दूं तो क्या रह जाएगा इसमें, जो लफ्ज जिससे बना है ये रूट वर्ड, सुअन अलिफ में हटा दूं
अच्छा अच्छा, सुआ। सीन वाव और क्या है, सू। सुआ। सीन वाव और हमजा। अच्छा अच्छा, अगर हमजा को और दो जबर को हटा दें। दो जबर को भी हटा, नहीं नहीं, हम सिर्फ अल्फाज को अब देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा लफ्जों के अंदर से लफ्ज निकाल रहे हैं ना। अच्छा हम्म, अच्छा, तो हमजा को और दो जबर को, वो अलिफ को हटाना है। ये देखें किधर गया, ये इधर। अब ऊपर चला गया शायद, नहीं नहीं, नहीं। इधर ही है। हाँ जी। सीन सीन वाव हमजा इसका रूट वर्ड है, इससे जो बना है, यानी इसकी जड़ ये है, सीन अच्छा वाव हमजा। अच्छा, इसका होगा सू। हाँ जी। अच्छा, इसको सू भी नहीं कहते, सीन वाव हमजा बस कहेंगे, ठीक है। जी। याजलिमु में या निकाल दें, वो के मायने में आती है। और बाकी क्या रह गया, सिर्फ हर्फ बताए मुझे, ज़ा मीम लाम और मीम ज़रू मीम। लाम और मीम रह गया। ऐसे ही नफ्सा में हूं को निकाल दे तो नफ्स रह गया। ऐसे ही यस्तगफिर में या सीन ता निकाल दे, और बाकी क्या रह गया, आगे वाले तीन हरूफ, वैन फेरे। गाइन फा और रा, गाइन फा और रा। हाँ। तो जाजिद में है, जाजिद में है, या को निकाल दें क्योंकि या ने किसी की जगह ली हुई है। तो हम कहते हैं, कोई बहुत जोश में आ जाए तो हम क्या कहते हैं, जिद। वजद में आ गया। हम्म। कभी सुना उर्दू में, हाँ जी हाँ जी। वजद में आ गया, वाव जीम और दाल हो गया, ठीक है। हम्म। तो गफूर रहीम में यही है, गफारा, ये यस्तगफिर में गाइन फारा है, और रहीमा में मीम के आगे अलिफ जो है वो खत्म कर दें, और या दरमियान से खत्म कर दें, तो उसका रूट वर्ड निकल आया। क्या रह गया, या और अलिफ निकाल दें तो क्या रह गया, रा, हा और मीम, ठीक है। यकसिबा में यकसिब में या को निकाल दें तो यही रूट वर्ड है, काफ सीन बा। सब और इसम में क्या होगा, सिब। जी इसम हमजा सा सी और मीम, कसिब। हमजा सा और कसिब। मीम। इसम, इसम गुनाह को कहते हैं, बहुत बड़ा गुनाह इसम। तो ये यकसिबू में भी या और हा निकाल दें। आबदा बहन आप करें, इनको निकालें। किसमें सिस्टर? ये यकसिबुहु, काफ सीन बा सिस्टर आएगा ना? काफ सीन बा, कसब हम कहते हैं ना, कस्बे हलाल उर्दू जी। का, हाँ वही जी। है, हाँ जी। कमाना। कसब का मतलब कमाई करना। जी। तो नफ्सी का हम कर चुके, अलीमन हकीमा, ये भी आइन, इसको करें अलीमन हकीमन, जल्दी जल्दी। सिर अलीमन तो अलम आयन लाम मीम हो गया। आइन लाम मीम और लाम। हा काफ मीम हा काफ मीम, हाँ जी। ठीक है। आगे खतीआतन, का ता तो हमजा खता से खता, काता हाँ जी खता ही हो गया ना। खता, खता से खता, खता, हमजा। हमजा तो बाकी बारी अन, बरी बरिया बा बारा रा या हमजा नहीं नहीं बा नहीं, या बा निकाल रा दे, हमजा। बारा हमजा, बरा, हाँ जी बरा तुम मिनल्लाही, सूरत जी। तौबा, हाँ जी बरा, जी। शुरू, सूरत तौबा का बरियुल जिम्मा होना, जी यानी कोई जो गुनाह से बरी है, हाँ जी। किसी बेगुनाह को, वो उसी को कहते हैं ना बेगुनाह, जी जो गुनाह से बरी हो लेकिन उसके ऊपर डाला जाए गुनाह। इहतामाला, हा रिफत बहन, हा एह, मीम लाम हमल, हमर हाँ हमी, जी हम हमल, हामिला, तहम्मल, हमारा उर्दू का लफ्ज तहम्मल है। जी। जी जी हमल और तहम्मल दोनों ही है, हामिला भी है, इसी से ही आता, यानी कि ये हा मीम लाम ही से सारे हाँ लफ्ज निकलते हैं फिर, ठीक जी। है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे
ए, पीछे से आवाज आ रही। मुबीना, बा या नून या नून बैयीना होता है बयान, बेयीन बा या नून हमारा उर्दू का है बयान करना, ठीक है। ये है हमारा रूट वर्ड निकल आया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुद ही पता चल गया, रुकू 13 हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अब सब आपने ना माइक बंद कर लें और मैं ना तफसीर इसकी कर लें थोड़ी सी। कहाँ से है? 103 से है ना, जी जहाँ आ गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो काफी तो आपको समझ आ जाता है जब पढ़ रहे होते हैं, ऐसा ही है, जी जी काफी हद तक समझ आ जाता होता है। लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको कि ये जो शुरू वाली 107 नंबर की आयत, 108 नंबर की आयत है, नो 8 क्यों है, 3 है, 103 की हाँ जी 3 है नजर, वो जरा सा ऐसे ही आ रहा है ना, क्योंकि मिट्टी मिट्टी सी है ना, कॉपी है ना, फोटो कॉपी, अच्छा तो इसलिए ये जो कुरान ऊपर है उसकी मैं बात कर रही हूँ ना, तो जब मैं देखती हूँ तो कई दफा वो नजर नहीं आता। ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 103 तक हमने करना फायदा कदई तुम, ठीक है जी इंशाल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला, सुब्हान अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर जब तुम नमाज पढ़ चुको तो याद करो अल्लाह को खड़े बैठे। पीछे हमने क्या पढ़ा था? कसर कर लो नमाज को। जंग की हालत में हो तो क्या करो? जब कसर बिल्कुल जंग गुमगसान की जंग हो रही हो, इतनी वो एक दूसरे गुत्थम गुत्था हो रहे हो, तो एक जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आके पढ़े नमाज, वो सजदा कर चुके तो दूसरी आ जाए, ऐसा ही है जी जी है ना। उन हाँ जी हालात से अब निकल कर अब आप अमन में आ गए हैं, ठीक है, यानी कि जंग खत्म हो गई है, खौफ दुश्मन का खत्म हो गया है। अब आप नमाज कैसी पढ़े? फिर जब जब तुम नमाज यानी कि कहाँ गया, जब तुम नमाज खौफ अदा कर लो तो खड़े बैठे, सॉरी ये अभी नमाज खौफ का ही है, कि जब नमाज खत्म हो गई है तो खड़े बैठे जिस हाल में भी हो तुम क्या करो? लेटे हुए हर हाल में, यानी कि जंग के दौरान भी और जंग के बाद भी हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहो। क्योंकि जंग के दौरान कितना बहुत ज्यादा जिक्र जिक्र करते थे, क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना तआला उधर तो जान के लाले भी पड़े होते हैं ना, जी और फतह भी पानी है, मुसलमानों ने काफिरों को खत्म करना है। और फिर ये है कि अम, अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर कि वैसे भी जितना ज्यादा अल्लाह को गम की हालत में बंदा याद करता है, तकलीफ की हालत में, दुख की हालत में, उतना दूसरे हालात में कम याद करता है ना। जी खुशियों में तो हम खुशी देने वाले को ही भूल बैठते हैं ना, तो गम की हालत में, खौफ की हालत में इंसान ज्यादा याद करता है। फिर क्या होता है, कभी अल्लाह ना करे कि हम पर कोई मुसीबत आ पड़े, हम खड़े बैठे लेटे उठते चलते फिरते अल्लाह को याद कर रहे होते हैं कि नहीं? जी कर रहे होते हैं ना, कि हाँ अल्लाह ताला तुझे दूर कर दे, अगर बीमारी है तो अल्लाह दूर कर दे, अगर कोई दुख तकलीफ किसी की तरफ से आ गया है तो फिर हम कहते हैं अल्लाह दूर कर दे, माश का है या कुछ और है। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं हर हाल में अल्लाह को याद करो, यही है अल्लाह का हुक्म। जब दुश्मन की तरफ से इत्मीनान हो जाए तो मामूल के मुताबिक पूरी नमाज अब पढ़ो। ये अब खौफ की नमाज नहीं पढ़नी, अब कसर नहीं है, कसर भी हमने पढ़ा है ना, कि जी सफर की हालत में हो, दुश्मन का भी खौफ लाहिक हो तो कसर कर लो, नमाज अच्छा यानी छोटी कर लो। अब पूरी पढ़ेंगे, इत्मीनान की हालत में नमाज पूरी पढ़नी है। बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। ये नोट कर लें, किताबन अच्छा मौकूता, किताबन फर्ज है, मौकूता मुकर्रर औकात मुकर्ररा वक्त पर। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता,
जी हम भूल बैठे हैं आज। हम कहते हैं कोई बात नहीं, सेंटर हो आओ, शॉपिंग कर आओ, फिर सारी नमाजें आके कज़ा पढ़ लेंगे। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? वक्त की पाबंदी के साथ पढ़नी है भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कहाँ था कज़ा नमाज का रिवाज? कभी सुना ही नहीं था। उन्होंने तो अजान होते ही कानों में पड़ती और सब बंद, ठप ठपा के नमाज के लिए चले जाते। तो हम क्या करते हैं? हमें भी यही काम करना है, ठीक है। नमाज कहीं भी हो, अल्लाह ताला ने के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे लिए, यानी ये तोहफा है उम्मत मुस्लिमा के लिए, कि मेरे लिए सारी जमीन जाए नमाज बना दी है, सारी जमीन मस्जिद बना दी गई है। यानी मुसलमान जहाँ कहीं भी हों, ग्रास ग्रास पर हैं, कहीं बाहर हैं, फुटपाथ पर जा रहे हैं, साइड पे होके नमाज पढ़ सकते हैं। जगह बथेरी होती हैं, बहुत होती हैं, ठीक है। चारों तरफ आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी अपनी अपने कंट्रोल में है ना, तो गाड़ी खड़ी करके नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाज में है तो जहाज खड़ा करा सकते हैं? नहीं। नहीं, डिफरेंट है साहब, फिर जैसे हैं वैसे ही पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि नमाज वक्त की पाबंदी के। अब बताएंगे घर वालों को जो कज़ा पढ़ते हैं आके, बच्चे भी कुरान अपने वर्क काम के से। बाद, काम के बाद, या स्कूलों के बाद, या कॉलेजों के बाद, या यूनी के बाद पढ़ते हैं आके। अगर पढ़ते हैं तो अल्लाह करे कि हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी। तो ये उनको वक्त की पाबंदी के साथ उनको कहना, जहां कहीं भी हो 5 मिनट लाते हैं, सिर्फ फर्ज पढ़ ले। अगर इतना किसी ने मतलब उनको टाइम नहीं मिलता, सिर्फ वुजू कर छोड़े, वुजू अपना कायम रखे, किसी ब्रेक वगैरह में वुजू कर छोड़े, मोजे पहन लें घर से, ताकि इतना लंबा वुजू ना करना पड़े, पाँव वगैरह ना धोने पड़े, मसा कर लें ऊपर से। और अपना जब भी नमाज का टाइम आए तो उस टाइम के अंदर अंदर, क्योंकि नमाज का टाइम जब शुरू होता है और ख़त्म होता है, उस टाइम के अंदर अंदर जो है आपने 4 फर्ज पढ़ लें, 2 फर्ज अगर फजर है, 3 फर्ज अगर मगरिब है तो उनको पढ़ लें। बाकी जो है वो तो फिर नवाफिल में इंसान जब भी टाइम हो, फिर बाद में, जैसे जोहर की 4 फर्ज पढ़ चुके हूँ, तो जब आपका टाइम होता है तो फिर आप 4 सुनते और 2 सुनते भी पढ़ सकते हैं बाद में, ठीक है। लेकिन आप काम पे 4 सुनते पढ़ लें, 4 फर्ज पढ़ लें। ये चीजें हमें अपनी जिंदगी में लानी है। ये मुसलमानों की जिंदगी से खत्म हो चुके हैं, हमने इसको वैल्यू नहीं दी है। इसको हमने सेकेंडरी चीज बना लिया है कि टाइम मिलेगा तो नमाज पढ़ लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। ऐसा ही है? कोई बहन बताएगी ऐसा है कि नहीं? कभी देखा किसी को ऐसा करते हुए आपने? टाइम देना है, अपनी नमाजों को टाइम देना है। वला ताहिनु, और देखो दुश्मन का पीछा करने से हिम्मत ना हारो, यानी कि दुश्मन का पीछा करना है, दुश्मन को पकड़ना है। छोड़ना नहीं पकड़ना। है। क्योंकि अगर जंग हो जाती है और दुश्मन जो है अभी इधर उधर ही है और पीछा नहीं करते आप, जब जी। जंग जीत जाता है, जंग जीतने वाला पीछा करता है फिर कि दुश्मन को भगा के आए, हम्म। ठीक है। क्योंकि जंगे ओहद में यही तो हुआ था, हाँ जी। जीती जीती जंग मुसलमान हार गए। क्यों? क्योंकि मालो दौलत के पीछे पड़ गए, और जी। दुश्मन जो था वो उसको भगाया नहीं ना दूर तक। तो वो उसने देखा, वो दुश्मन ने, वापस आ गया। खालिद बिन वलीद उस वक्त सिपा सलार थे काफरों के, तो उन्होंने देखा खालिद बिन वलीद ने कि वो उसने, वैसे उनको अल्लाह की तलवार कहा जाता है ना, जी। सॉर्ड ऑफ अल्लाह। खालिद बिन वलीद को जब उन्होंने मुसलमान हुए तो अल्लाह की 100 जंगें कहा जाता है कि उन्होंने लड़ी थी अपनी जिंदगी। जी। कुफर और मुसलमानी की हालत में कुल 100 जंगें लड़ी थी, लेकिन मौत कहाँ पे आई? बिस्तर पर, जी। बिस्तर पर। और रोते थे, जी। रोते थे कि मैं, यानी कि मैंने इतनी जंगें लड़ी और मौत और मुझे, शहादत की बात नहीं आता। शहादत की मौत नहीं आई। क्यों? अल्लाह की सौड नीचे नहीं हो सकती ना, हम्म। अल्लाह की सोच को कोई तोड़ नहीं सकता।
अल्लाह की तलवार को कोई तोड़ नहीं सकता, तो वो कैसे शहादत पाते ना। इसलिए है ना, यानी कि इसके नीचे पीछे भी है अल्लाह ताला की सोट कहा है, जितनी जंगें उन्होंने लड़ी हैं मुसलमानी और दूसरी हालत में, सब जंगें ही जीती हैं। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, तो ये सुभान अल्लाह। और बाप क्या था? मुसलमानों का पक्का दुश्मन। अल्लाह जी, ताला ने उसका इतना जिक्र किया कुरान में कि खुर्तूम और हराम ज्यादा, और यानी कि वो हराम की औलाद, और सब कुछ अल्लाह ताला ने गिना उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसकी दुश्मनी इस्लाम के लिए बहुत पक्की थी। लेकिन बेटों से अल्लाह ताला ने अपने काम लिए। कुछ बेटे मुसलमान हो गए, जैसे खालिद बिन वलीद थे, और भी थे। तो जी। सुभान अल्लाह ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर तुम दुख उठाते हो, यानी कि अब जो जंग हुई है, जंग की हालत में जख्मी भी होंगे, थके हारे होंगे, हिम्मत इतनी नहीं होगी, क्योंकि लड़ाई के बाद हिम्मत बस होती है ना। घर में ही कोई लड़ना शुरू कर दे तो बाद में क्या होता है, जी। लड़ लड़ के थक जाते हैं ना। हाँ जी। हालांकि लड़ना नहीं चाहिए हमें। तो ये अल्लाह ताला कहते हैं, फिर अगर तुम दुख उठाओगे, यानी कि उन दुश्मन का पीछा करोगे, तो दुख ही होगा ना, फिर दुख के ऊपर दुख होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हें तो उम्मीद है, हम्म। दुश्मन भी तो दुख उठाता ही है ना, उसको उसके भी तो जख्मी जा रहे हैं ना, हाँ जी। जख्मी होकर, तकलीफ उठाकर, कईयों के खो गए, वो भी तकलीफ में गम की हालत में जा रहे हैं। तो उनको भी तो दुख है, दुश्मन भी दुख उठाता है, जैसे तो जान तो एक ही जैसी है ना सभी की, इंसानों की। जी, तो लेकिन अब फर्क क्या है मुसलमान के दुख उठाने और गैर मुस्लिम के दुख उठाने का? और तुम उम्मीद रखते हो अल्लाह ताला से अजरो सवाब की, हम्म। लेकिन वो भी उम्मीद नहीं रखते। जी। उन्हें तो सिर्फ दुनिया के लिए लड़ना था ना, कि हम फतह जब हो जाएं। उन्हें तो अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं, वो तो अल्लाह को मानते भी नहीं पूरी तरह, क्योंकि अल्लाह के जी। साथ शरीक ठहराते थे। और कई तो बिल्कुल ही नहीं मानते। हम्म। और अल्लाह ताला, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। पता चल रहा है ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला किस तरह हमें हमारी हिम्मतें, आज मुसलमानों ने हिम्मतें हार दी ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ईरान डटा हुआ है, खड़ा जी, है। जी, डटा हुआ है, हिम्मत नहीं बेटा, हारता वो, अल्हम्दुलिल्लाह ना ही हारे। नहीं हारे अल्लाह ताला। मुसलमानों को दिखा रहा है कि मुसलमान ऐसे होते हैं, जी, उठा रहा है। लेकिन मुसलमान, मुसलमान उठ ही नहीं रहे। हाँ जी, मुसलमान अपना अपना मफाद है ना, जब मफाद जी, दुनिया का सामने आ जाता है फिर नहीं उठते ना। जब नमाज क्यों छूटती है? इसीलिए तो मफाद है दुनिया का। अब बच्चे की शादी है, बच्ची की शादी है, तो मैं नमाजें कैसे पढूं? वो याद करें कि जो मैंने पहले भी बताया होता है कि एक औरत जहाँ की है, यानी कि अपने टाइम की बात है, और ठीक बात है कि ये हमारी उस्ताद ने बताया था कि एक औरत जो थी, उसकी बेटी की शादी थी, और कहने लगी बेटी से कि उसने मेकअप खूब करवाया, सब कुछ, कहने लगी कि बेटी कहने लगी नमाज का टाइम है, मैंने नमाज पढ़नी है। तो जी। माँ कहने लगी कि नहीं, क्योंकि मेकअप उतर जाएगा, इतने पैसे लगाए हैं। जी। साहब वो जो सेटिंग है आपकी खराब हो, दुपट्टा भी तो करवाया होता है ना, हाँ जी। खराब हो जाएगी, आप नमाज आज नहीं पढ़ेंगी। बेटी कहने लगी नहीं, मैंने नमाज तो पढ़नी है। माँ का हुक्म कैसे मान सकती हूँ अल्लाह का हुक्म छोड़कर? हम्म। क्योंकि फर्ज तो नमाज अल्लाह ताला ने की है, तो मैंने नमाज पढ़नी है। खैर, माँ ने कहा कि अगर तूने नमाज पढ़ी तो मेरा तो इससे कोई यानी कि इतने उसने डाले ना कि कोई तलक नहीं है। तूने, मैं हुक्म देती हूँ माँ होने के नाते कि नमाज नहीं पढ़नी। लेकिन बेटी ने कहा कि अल्लाह के हुक्म के आगे किसी का हुक्म नहीं है, मैंने नमाज पढ़नी है। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने गई, जब सजदे में गई तो फौत हो गई, हम्म। जान चली गई जी। बेटी की। अब क्या हुआ? उस माँ को समझ आ गई कि अगर ये बेटी नमाज ना पढ़ती तो क्या होता। क्योंकि हमें पता है कि कौन सा आखिरी वक्त है हमारा। नहीं, नहीं पता। वो तो नहीं नमाज पता। की, अल्लाह का हुक्म माना ना उसने बंदों का छोड़कर, नमाज की जी, हालत में सजदे में चली गई, फौत हो गई। जी। तो माँ को फिर समझ आई कि अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ सकते,
ये दुनिया के रिवाज, ये दुनिया के मेकअप, ये दुनिया के सेटिंग सब खत्म हो जाते हैं। अब खत्म हो गई ना उस लड़की के सब कुछ। जी जी माँ के सारे, अब माँ को किसकी, जब बेटी फौत हो गई तो उसको मेकअप की और उस सेटिंग की फिर हिरख फिक्र रहा नहीं। कि बेटी का, किसका बे, ज्यादा गम लग बेटी गया? बेटी का। बेटी का बेटी बेटी का का लग गया ना। तो अब उसको ये भी आया कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा किया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी सजदे की हालत में गई है, जी अल्लाह का हुक्म मानती गई है। तो ये हमने भी ऐसी औलादें तैयार करनी है जो गलत अगर हम हों तो हमें भी हरा दें, अल्लाह के हुक्म के आगे हमें भी हरा दें। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ऐसे माँ बाप बनाए और हमारी औलादों को ऐसी औलादें बनाए अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने वाले। तो ये बिल्कुल वही है कि हम हिम्मत क्यों हार गए हैं मुसलमान, हर तरह से नमाजें छोड़ी, ज़कातें छोड़ी, ज़कातों की जगह पे बड़े बड़े क्या करते हैं, रिश्वत दे देते हैं ज़कात की देने की बजाय। तो ये सारी चीजें करके हम गुनाहगार होते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे कि बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, अल्लाह से बख्शिश मांगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की तरफदारी में झगड़े जो अपने आप पर जुल्म करते हैं, जिन्होंने अपने आप से खयानत की है, अपने आप से खयानत करते हैं। अल्लाह उस शख्स को पसंद नहीं करता जो बददियानत और गुनाहगार हो। तो अब पता चल गया कि गुनाहगार, नमाज छोड़ना गुनाह है, जी अमानत में खयानत करना गुनाह है, गुनाह है। जी बहुत सारी चीजें जो है गुनाह की हम कर बैठते हैं, है ना। जी तो अल्लाह सुब्हाना ताला पसंद नहीं करता इंसानों को जो ऐसा काम करे, अल्लाह का हुक्म छोड़कर दूसरों का हुक्म माने। अल्लाह ये छोटे छोटे तो हाँ, मैं इसको दे रही हूँ लेकिन आपको समझाना मकसूद है कि आपने ऐसा जो जनी के ये आयत तकीद दर तकीद है कि खयानत करने वालों की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जवाबदही ना करें, यानी उनका साथ बिल्कुल ना दें, उनकी बात की जैसी बात ना करें, क्योंकि वो अल्लाह को पसंद नहीं करते। और अल्लाह भी फिर अल्लाह ताला क्या है फरमाते हैं, अल्लाह भी उनको फिर पसंद नहीं नहीं करता। तो कोई नहीं चाहता ना कि अल्लाह उसे पसंद ना करे, हम तो जी चाहते हैं कि अल्लाह हमें पसंद करे, ऐसे ही है। जी हाँ जी जी अब नमाज के अंदर खयानत क्या है वो बताएं मुझे, नमाज के अंदर जाकर खयानत करनी, वो जल्दी जल्दी वो पढ़ते हैं। जल्दी चोरी जल्दी जो करनी, जी चोरी चोरी सबसे करनी बदतरीन चोरी नमाज की चोरी है। जी जी तो वो चोरी क्या है कि रुकू सुजूद पूरे ना करें, पूरे ना करना हाँ जी जल्दी जल्दी अल्फाज को पूरा अदा ना करें, हाँ कोई जी ध्यान ना दें, और ये नमाज हम कहें कि सिर्फ जुबान अदायगी कर रही हो। जी तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ऐसी चोरियों से बचाए, ऐसी खयानतों से भी बचाए। वो हाँ लोगों से छुपते फिरते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकते, यानी जाहिर है कि जब इंसान हारता है, जब इंसान के जाहिर है कि इज्जत कोई नहीं रहती तो फिर छुपते हैं ना, जी जी है। बेवकूफी का बयान अल्लाह ताला बता रहे हैं ना कि जो लोग अपने ही जैसे आदमियों से शर्माते हैं, यानी कि मुसलमानों का साथ दे दिया तो दूसरों से क्या मुंह क्या दिखाएंगे उनको, है ना। जी और चोरी को छुपाते हैं और अल्लाह ताला से नहीं शर्माते। जो हर वक्त उनके साथ है, अल्लाह हर वक्त साथ है, लोग तो कभी कभी होंगे, और उनके जी हर काम को देख भी रहा है। बिल्कुल खास तौर पर उस वाकया को जब उन्होंने बाहम मशवरा करके ये राय कायम की कि इल्जाम यहूदियों पर लगाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जनी के रफाया और कतादा की शिकायत कर दो, और बिला वजह हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, और उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी दरखास्त करो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के मुकाबले में हमारी हिमायत फरमाए। मैंने बताया हुआ है जी स्टोरी, जी हाँ है ना। क्योंकि यहूदी और मुसलमान मुनाफिक का एक मुसलमान का एक यहूदी के साथ झगड़ा हुआ था, ठीक है। जी और यहूदी हक पर था तो कहाँ आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मुसलमान कहता था फलां के पास जाओ, जी जनी यहूदी के पास जाओ कराने के लिए फैसला फैसला तो वो नहीं माना ना।
छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि फिर कुरान का हुक्म मानना है कि अदालतों का मानना है। कुरान का। क्योंकि कुरान कई दफा कुरान का। अदालतें कुरान के खिलाफ बोलती होती हैं, जी जी सिस्टर। और आज तो दुनिया की बोल अदालतों रही में हैं आप तो यही साफ कुछ दिखाई है देता है। हाँ है जी। ना, यही कुछ है। जिसके तरफ की हवा चलती है उधर के हो लेते हैं, उधर की हो हाँ रही जी। उधर के हो लेते हैं। लेकिन अल्लाह की किताब, अल्लाह का तो इल्म भी नहीं है। अगर किसी को इल्म है तो फिर भी नहीं उसको लेते ना। जी। अल्लाह जी ताला फरमाते हैं, मुसलमानों तुमने दुनिया की जिंदगी में मुनाफिकों की तरफदारी में झगड़ा किया, मगर क्यामत के दिन कौन उनकी तरफदारी में अल्लाह से झगड़ेगा? कि दुनिया में तो कर लगे, उनका साथ दे दिया। जाहिर है कुनबे कबीला भी साथ देता है ना फिर, कि हमारा आदमी है, इसका साथ देना है, जी। पर्दापोशी करनी है इसकी। हाँ जी। तो अल्लाह से कौन झगड़ा करेगा? कौन होगा उनका काम बनाने वाला? और याद रखो, जो कोई बुराई करे, या अपने ऊपर जुल्म करे, तो ये जुल्म ही है ना अपने ऊपर करना। जी फिर अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगे। पता चल गया कि मैंने ये गुनाह किया, गलत कर लिया, माफी मांग ले, तो अल्लाह को बख्शने वाला, रहम करने वाला पाएगा। जो गुनाह करता है उसका वबाल उसी पर है, दूसरे पर नहीं होगा। ये नहीं कह सकते कि आप कर लें ये, मैं आपके आपका वबाल उठा लूंगा क्यामत के दिन, है ना। कई दफा औरतों के भी कई मर्द कर रहे होते हैं फोर्स के, आप अपना खोल के बाल रखे, खोल के जी। अपने आप को रखे, जे लिबास पहन ले, कोई बात नहीं, क्यामत के दिन मैं आपको छुड़ा लूंगा, हाँ जी। मैं आपका भार उठा लूंगा। कोई उठा सकता है? नहीं। 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 नहीं उठा सकता। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा। अगर माँ कह दे शादी वाले दिन बेटी से कि आपने आज स्कार्फ नहीं पहना, अगर पहनती हो तो, अल्लाह करे कि पहनती हो, जी। और आज आपने स्कार्फ नहीं पहना, और ये सारा ऐसे ही जेवर वगैरह सब कुछ नंगा सामने नजर आना चाहिए, तो क्या जी। होगा? बेटी अगर नहीं करती आम हालात में तो उसे करना चाहिए? नहीं। नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। उसे नहीं अल्लाह करना का हुक्म मानना चाहिए, माँ का नहीं। माँ जो कुछ मर्जी कहती रहे, या सास जो कुछ मर्जी। कई दफा सास का भी होता है, लड़की ब्याह के गई है सास ससुर के घर, है ना, अब उन्होंने वलीमा करना है। जी, अब मैं अपने अपने लोगों की बातें बता रही हूँ, जो हमारे लोगों में हो रहा है। वलीमा करना है और सास कहती है कि हमारे जहाँ रिवाज नहीं है कि लड़कियां बुक्कल मार के बैठे, जहाँ इनका दुपट्टा लेके बैठे, हम तो पूरा दिखाते हैं लोगों को, है ना। तो अब लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए, गुनाह इतना बड़ा सर पे ले लिया कि बाल नंगे। पर डॉक्टर फरहत हाशमी कह रहे थे, अपना इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि किसी मुल्क में वो गए थे, मियाँ बीवी, जब वो पीएचडी कर रहे थे, तो जिस आलम के पास मिलने गए ना, तो उन्होंने मतलब इन्होंने पूरा नकाब किया हुआ था लेकिन पाँव नंगे थे। तो उन्होंने कहा कि पाँव भी ढांप लो, यानी पर्दे का हिस्सा है। आलम ने कहा, तो कहते हैं मैंने पाँव भी ढांपने शुरू कर लिए। तो क्या लेते हैं हम तो पाँव से अब टखनों से भी ऊपर आ गए। है हाँ कभी जी। किसी को देखा था ट्राउजर टखनों से ऊपर? बहुत देखे सिस्टर। बहुत लोग हैं ही ऐसे। हम्म। हाँ जी। तो बाजू कितने होते हैं कि नहीं? जी नहीं, वो कईयों भी के तो है। होते ही नहीं सिस्टर, बाजू होते ही नहीं है। बाजू होते बहुत सारे बच्चों के। हाँ जे जी। बेटियां शिकायत करती हैं कि जब भी सिला सिलाया लेते हैं, तो जब पाकिस्तान से आप लाते हैं तो बाजू लगवा के बाजू ने। लेके आया हाँ करो, जी। जी। बाजू साथ में कोई कपड़ा मिला के लगवा के लेके आया करो। जी। क्योंकि जहां पे फिर मुश्किल होती है, तो जहाँ फिर बाजू कई दफा उन्होंने साथ दिए होते हैं, तो उनको लगवा लाया करो, यानी कि जो जी साथ होते हैं वो भी छोटे ही होते हैं बाजी। छोटे होते हैं जहाँ हाँ जी। उनमें लाइनिंग नहीं। अगर जी। लाइनिंग के बगैर पहन लिया तो कपड़ा ना पहनने के बराबर है, जी। बारीक कपड़ा। अगर हम दुपट्टे इसमें नमाज पढ़े जो इतना बारीक है, सभी को नजर आ रहा है, बालों का रंग नजर आ रहा है, बाल नजर आ रहे हैं, तो गला नजर आ रहा है, तो नमाज हो जाएगी? नहीं। नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है। वो हमने पूरी चादर लपेट के, मुझे एक किसी लड़की का बहुत अच्छा लगता है, मैं ना अपनी बेटी के पास साथ गई थी यूनिवर्सिटी के कैबिन में नमाज पढ़ने के लिए।
तो उसने ना कोई मलेशिया या इंडोनेशिया की लड़कियां थी, वो तकरीबन सारी आके ऐसे ही कर रही थी। एक तो वो, वैसे तो उनको होना चाहिए हर वक्त ही ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं कि पैंटें और शर्टें वो दूसरा सब कुछ पहना होता, जब लिबास ढीले भी पहने होते तो ऊपर से एक और आके चोगा सा पहनती हैं, वो एक और स्कर्ट सी पहन लेती है ना लंबी सी सबसे स्कर्ट है और ऊपर से स्कार्फ हल्के के से। समेत ही हाँ सारा जी कवर कर लेता है, वो पहन लेती है। और एक लड़की ऐसी आई कि उसने, मुझे अभी भी याद है, बहुत साल पहले की बात है, कि वो उसने पता क्या किया, बिल्कुल अपने दुपट्टे को ना, दुपट्टा उसने ऐसा स्कार्फ लिया कि बिल्कुल चारों तरफ से उसने अपनी साइडें भी आंखों की ढांप ली, यानी कि जैसे आप कहते हैं घूंघट निकाल लेना, जी उसने घूंघट निकाल के नमाज पढ़ी। तो मैं कई दफा देखती होती हूँ कि कई दफा ना साइडों से नजर वो कहते हैं ना आंख की चोरी, जी खयानत जी। आंख की, साइडों से कई दफा नजर आ रहा होता है ना चीजें। तो हाँ फिर जी मैं वो ऐसा करती हूँ कि थोड़ा सा अपना दुपट्टा आगे करके उसको ढांप लेती हूँ थोड़ा सा ना, ताकि मुझे वो साइडें नजर ना आए। वो मुझे उस लड़की का बहुत याद आता है कि उसने किया था, और मुझे बाद में फील हुआ कि क्यों उसने किया था, क्योंकि साइडें किसी की चारों तरफ से कुछ नजर ना आए, सिर्फ अल्लाह के सामने वो खड़ी हो जाए। तो हम करेंगे ऐसा कुछ कि हमारे बाल ना नजर आए, हमारा गला ना नजर आए, हमारी बाजू ना नजर आए, हमारे घुटने भी कई दफा नजर आ रहे होते हैं लोगों के। घुटने कैसे नजर आते हैं, वो छेद सी जो लैसें लगाई होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारा ये नमाज के लिए जो अल्लाह का दिया हुआ प्रॉपर लिबास नहीं है, कुछ भी पहने, आप कुछ भी पहने, लेकिन ढीला ढाला हो और बीच में से नजर ना आए। ठीक है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो कोई गलती या गुनाह करे, फिर उसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर लगाए, तो उसने बड़ा बहतान और सरीह गुनाह अपने सर पर ले लिया। ये तो हमें पता ही है ना, बेगुनाह पर गुनाह लगाना, कोई इल्जाम लगा देना, इसने किया है, किया आपने हो, और खुद दूसरे को कह देना कि इसने काम मुझे किया है ताकि मैं बच जाऊं और दूसरा मुसीबत में आ जाए। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं बहुत बड़ा बहतान है किसी के ऊपर बांधा, और बहुत खुल्लम खुल्ला गुनाह उसने अपने सिर ले लिया है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से ना करे जो ऐसे लोग करे। आमीन सुम्मा आमीन। जहाँ पे हमारा खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगर किसी ने कोई इसके बारे में सवाल करना है, पूछना, कई दफा राय भी दे सकते होते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ मतलब आपने अपनी कोई, कई दफा होता है ना कि आपके तजर्बे से कोई और सीख जाता है, यानी कि किसी के, जैसे मैंने अभी किसी लड़की का तजर्बा बताया तो सीखने का पॉइंट जी है ना, जी वो जी लड़की की शादी वाले दिन नमाज का बताया तो सीखने वाला पॉइंट है ना। जी तो जी अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो इसमें आती हो तो बताएं अपना तजर्बा, कुछ भी। ठीक है, उसमें डाला करें अपना हिस्सा, ठीक है, ताकि किसी को फायदा हो जाए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अमल की तौफीक दे। अगर कोई बहन बोलना चाहती है तो ठीक, वरना मैं बंद करूं इसे, रिकॉर्डिंग। जो पता लग गया वो तो करेंगे ना, बोलना नहीं है तो। इंशाल्लाह। माशाल्लाह आप सारे बहुत शाई हैं बोलने के लिए। हम्म, दीन में शाईनेस नहीं है। अब मेरे जैसा कोई शाई नहीं था प्राइमरी स्कूल में और हाई स्कूल में, जी ना मेरी कोई फ्रेंड ही थी, क्योंकि मैं बोलती नहीं थी लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के दीन ने मुझे बुलवा दिया है। और अब वो कहते हैं बोलना बंद कर दो, उल्टा है। आप तो बोलते रहते, हर वक्त बताते रहते हो कि ये ऐसा है और ये ऐसा है, कभी बंद भी कर दिया करो। अल्लाह हमें तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक बताने की, जी गलत से रुकने की। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।